Welcome friends, welcome to Sri Swaminarayan Defense Academy. Today we are going to focus on our next chapter, that is environmental management. Okay, in that we are going to focus on topics. What is ecosystem? Relation between environment ecosystem, then conservation, some pollution, okay, and the biodiversity hotspot. So ecosystem is a relation between ecosystem relation or interaction between the abiotic and biotic factor. So again another point comes that what are the abiotic factor, what are the biotic factors, right? Biotic factor involves all the organisms which are present in the environment, such as birds, animals, human beings, okay? And abiotic factor mostly includes your non-living or mostly non-living things such as air, water, wind, sunlight, etc., etc. So interaction between these living organisms with their surrounding environment having the abiotic factors or the components is known as ecosystem. First of all, you must have understood what is ecosystem, interaction between the abiotic and biotic factor. Some examples of biotic and abiotic factor also, right? Next comes your, what are the types of consumer then? What are the types of consumer? Before that, just observe this food chain. Okay, observe this food chain. It contains the abiotic factor. Biotic factors are these all kinds of animals such as grasshopper, frog, snake, eagle, and the fungus or the decomposers, right? Biotic as well as abiotic factor both are seen in this food chain. So we'll take example of the food chain to explain the or to understand the concepts of ecosystem, different types of ecosystem, then what are the consumers, different type of consumers, okay, what is food chain, what is food web. So here first you focus on the abiotic factor which you can see in this food chain. So abiotic factor like sun, wind, air, water, right? These are the abiotic factor, and biotic are the all kinds of organism along with the plants. Living factors are the biotic factors. The consumers, now see, this grass is consumed by this grasshopper, grasshopper is consumed by the frog, and so on, right? So first, grasshopper is the primary consumer. Why primary consumer? Because it is the one who is first consuming the producer. Plant are the producer or the first component of the food chain which is going to produce something for the remaining organisms. So here grasshopper is consuming the grass or plant, right? Here grasshopper is consuming the grass for the purpose of his to fulfill his energy requirement, right? Then why this frog is consuming this grasshopper? Because frog is also needing some kind of energy, and from where this energy is gained? From the food. And what is the food of this frog? It is grasshopper. So the one who is going to produce the energy first in the food chain is always known as producer, and the one who is going to consume the producer is known as consumer. Which type of consumer? Primary. Then comes here the one who is consuming the primary consumer is known as secondary, and so on, secondary, tertiary, quaternary. So here frog is consumed by whom? Snake is consumed by whom? Eagle, right? But
when the eagle's life cycle stop or when eagle dies, who ate this eagle? Who ate this eagle? Now the dead body of this eagle is consumed by whom? Decomposers. Who consumes the eagle then? At last, when eagle is finally dead, after completing its life cycle, when eagle is dead, who consumes or who deteriorates or removes the waste of this eagle? Think that if plants or animals or any kind of living organism dies, and if it is not perished or it is not consumed by someone, what will happen? So much dirt or the smell will be there on earth, right? So most important role is played by these decomposers. Why? Because they are responsible to diminish or to consume the dead and decaying material, so that there will be balance between the ecosystem, the hygiene and cleanliness will be maintained. And what organisms are coming then in decomposers? What do you think? Decomposers mainly consist of fungus, bacteria, okay, and many other microbes, which are going to consume the dead and decaying matter. That's why they are known as decomposer. They decompose any kind of organic matter, so that again it will be mixed into the soil or the environment, and it will be reused for the betterment of this earth. So next is, hope so you have understood here what is food chain, that one organism is consumed by another, and similarly this chain continues. But there are many such chains running parallelly or simultaneously. This is the example of, suppose, grassland ecosystem, okay. Similarly, water ecosystem is also there, where small fishes are consumed by large fishes are consumed by the whales and all, okay. Their producer in water ecosystem, who is the producer? Planktons, okay. In water or aquatic ecosystem, the producers are not the plant, but majoritarily they are the planktons. Planktons are the small microscopic organisms. They may be zooplanktons or phytoplanktons, okay. And when such food chains mix together or they are interacting with each other, such many food chains interact with each other, pond ecosystem, aquatic ecosystem, water, lands, and they, when interact with each other, they form a food web, a large or longest interaction seen on the earth, where the small ecosystem, such small ecosystem like grassland ecosystem, forest ecosystem, they are interacting with each other. So the food chains are also of different type, that the transfer of energy, okay, there is transfer of energy from producer up to the top consumer, Who is the producer here? Plant. Who is the top consumer? This eagle, okay. And when top consumer is dead, then who is responsible to consume it, or to whatever the dead and decaying material is coming from this eagle, who is going to consume it? Decomposer. Next, hope so you have understood about the types of consumer, who is the producer, who is the producer, and different types of consumer. Food chain, a single food chain where the particular environmental organisms are interacting with each other, but there are different kinds of environment, such as aquatic, then aerial habitat is also there, right? Then your land habitat, where this is a grassland. In aquatic habitat, you can see the pond ecosystem, then lake ecosystem. Ecosystem is made up of biotic and abiotic components.
Biotic components are again autotroph and heterotroph. Autotroph includes the producer which are going to produce their own food such as plants. Heterotrophs are animals and decomposers. Again, animals are the consumers. Animals are the consumers. What do they consume? They consume plants, animals. The animals which are consuming plants as well as animal, they are known as omnivores. The animals which are just consuming the plants are known as herbivore. And the animals which are strictly consuming the animals itself, they are known as carnivore. Okay. So animals include the consumer. Which type of consumers? There are various types of consumers. Such here it is primary, secondary and tertiary. Mostly the primary consumers are the herbivores. Most of the time, whatever the primary consumers are there, they will be the herbivore because they are going to consume the producers. Then secondary consumer may include carnivores or herbivore. There may be, or simply you can say anyone may be there, carnivore, omnivore or herbivore. In tertiary it is mostly carnivore. Then here in abiotic factor there are physical and chemical factor. Physical and chemical factor. What type of chemicals? Which includes the nutrients and minerals. Okay. Again, minerals are of two types: inorganic substances and organic substances. Organic substances includes the protein, carbohydrate and fats. These are the macromolecules from which each and every organism's body is made. Ecosystem includes just biotic and abiotic factor. Ecosystem includes the biotic and abiotic factor, but environment includes everything within itself. It is a vast concept which mostly consists of your chemical factors, biological factors, non-biological factors or physical, chemical and biological factors. Okay. Environment consists of physical, chemical and biological factors. Again, there are two types of then environment: natural environment and artificial environment. Natural environment mostly includes the one which nature itself have made. That is, and what are the factors including in this natural environment? There are water, atmosphere, air, land, right? Natural environment includes the forest, lakes. Nature itself has made, so that's why it is known as natural environment. Mostly you will consider here the forest, because in forest you can see everything, living, non-living thing, biotic, abiotic factors. But in artificial environment includes what? It includes the man-made thing. What are the man-made thing? We, for conservation of these organisms or the environment, sometime produces the artificial environments, right? The the national parks and all, for the conservation of the wild animals, wild species of plants too, we try to cultivate it, or we try to make it artificially so that the organisms and the plant species will survive over there. There are also some cycles which are running simultaneously, right?
Which type of cycles? Hydrological cycle, gaseous cycles, which may include the carbon cycle, the nitrogen cycle, oxygen cycle, then your phosphoric cycle, from which you get the calcium and all. Water cycle. You see the rain, right? Most of the time, how this rain or raindrop is formed? Whenever the large water body present on the earth starts to evaporate its water with the influence of sun, then this water is converted into vapor. Vapor then goes into the environment. There is condensation seen or precipitate. First the precipitation, then condensation of this water happens. Once the cloud are unable to hold the water, then rain comes. Again, the water which has gone from earth to the air or top, that comes down in the form of rain. There are different steps of the water cycle, such as evaporation, condensation, then precipitation, right? Environmental conservation. What do you understand by this environmental conservation? Whatever the environmental conditions are there nowadays, you are seeing are much more different from whatever you have seen earlier. अभी क्या है? पोल्यूशन कितना बढ़ गया? पोल्यूशन कैसे कौन से पोल्यूशंस बढ़े? वाटर पोल्यूशन आया, सॉइल पोल्यूशन आया, एयर, लैंड, वाटर, सॉइल, बहुत सारे पोल्यूशन. और ये सब क्यों हुआ? कैसे हुआ? What are the factors affecting the environment? So factors are of two type, natural and man-made. नेचुरल फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स आते हैं? जहाँ पर नेचर के कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हो जाती है क्लाइमेट चेंज की वजह से या किसी और चीज़ों की वजह से, कि वहाँ पर ये जो तुम्हारा नेचुरल हैबिटेट है, पूरा जो नेचुरल एनवायरनमेंट था जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स रिसाइड कर रहे थे, उनके लाइफस्टाइल पर अफेक्ट हो रहा है, उनके हैबिटेट पर अफेक्ट हो रहा है. तो नेचुरल में फैक्टर, यहाँ पर एक एग्जांपल उन्होंने क्या दिया तुमको? अर्थक्वेक. सिमिलरली सुनामीज आती है, राइट? साइक्लोन्स आते हैं. ऐसी कुछ सुनामीज, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स जैसे जो नेचुरल कैलामिटीज़ है, उनकी वजह से भी एनवायरनमेंट में डिसबैलेंस होने के चांसेस रहते हैं. और मैनमेड में क्या आ सकता है? डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, राइट? देन एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके वजह से एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस होते हैं. यहाँ पर देखो इस बॉक्स में महात्मा गांधी जी ने क्या बताया था? दैट द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड, नॉट द ग्रीड. मतलब ये जो अर्थ है, ये जो एनवायरनमेंट है, तुमको वो सारी चीज़ें दे सकता है जो तुमको जीने के लिए ज़रूरी है. लेकिन ऐसा है क्या तो तुम्हारे जो एक्सेस नीड्स है उसको पूरा करेगी? नहीं. एक्सेस नीड को पूरा करने के लिए एनिमल्स, स्पेशली ह्यूमंस जो है वो क्या करने लगे? फिर नेचुरल जो हैबिटेट है उसमें इन्वेड करने लगा. और इन्वेड करने की वजह से क्या हुआ? सारा जो एनवायरमेंटल बैलेंस था वो क्या हुआ? डिस्टर्ब होने लग गया. डिफॉरेस्टेशन किया ह्यूमंस ने डिफॉरेस्टेशन यानी कि क्या, जो भी नेचुरल फॉरेस्ट एरिया था उसको कट करने की कोशिश की. अर्बनाइजेशन किया, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह किया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, प्रोडक्शन किया, तुम्हारे जो डेली बेसिक नीड्स है उसको बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आई. इन सब सारी प्रोसेस में क्या हुआ? एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ हो गया, राइट? ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ करते करते फाइनली क्या हुआ? पोल्यूशंस बढ़ने लगे. पोल्यूशंस भी कौन से टाइप के? स्पेशली लैंड, वाटर एंड सॉइल. ये तीन मेजर ऐसे पोल्यूशंस हैं जिनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमंस पर, और बाकी के जो कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, बाकी के जो कोई लिविंग बींग्स है अर्थ के, उन पर ज़्यादा अफेक्ट होता है. तो यूजुअली पोल्यूशंस के कौन से टाइप? एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन, राइट? तो पोल्यूशन क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं?
डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा यूज़ किसका करने लगे हम, नेचुरल रिसोर्सेज। कौन से नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोलियम हो गया, माइनिंग के ज़रिए तुम्हारा जो कोई भी स्टोन्स है, अलग अलग तरीके के स्टोन्स है, कार्बन का जो, कोल का जो एक्सट्रैक्शन है वो, देन अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब जो भी हम डेली यूज़ की चीज़ें बनाते हैं उसको बनाने के लिए फैक्ट्री आती है, और फैक्ट्रियों का रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो कहाँ से आता है, इन्हीं सारी नेचुरल एनवायरनमेंट से वो एक्सट्रैक्ट करके उसका रॉ मटेरियल लेते हैं। हमारे जो डेली नेसेसिटीज़ है, ड्रेस हो गए, कुछ घर के का यूज़ करने वाली चीज़ें हो गई, इन सारे चीज़ों का क्या होने लगा, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल वो फिर से कहाँ डालने लग गए, डंपिंग कहाँ होने लगी, इसी एनवायरनमेंट में। मतलब रॉ मटेरियल भी एनवायरनमेंट से ले रहे हो, जो कोई भी बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो भी आप कहाँ पर डंप कर रहे हो, एनवायरनमेंट में डंप कर रहे हो। किसके फॉर्म में हो सकता है कि वाटर में आप वो जो एफ्लुएंट्स है, केमिकल्स है, उसको ट्रीट किए बिना छोड़ सकते हो, या फिर जो भी कचरा था उसे सॉइल में डाल सकते हो। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस समय जो कोई एयर तैयार हो रही, उस हार्मफुल गैसेस को आप एयर में छोड़े। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी में है लैंड वाटर एयर पोल्यूशन में एक और पोल्यूशन कौन सा आता है आपका, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। यहाँ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में मोस्टली सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, आपके यूवी एंड आईआर रेडिएशन। ओके, यूवी एंड आईआर रेडिएशन सबसे ज़्यादा। अगर कोई नुकसान हो किसी आईआर और यूवी रेडिएशन की वजह से, उसके 3 एग्जाम्पल्स इन्होंने कहे थे, चेरनोबिल, विंडस्केल और द 3 माइल्स आइलैंड। ऐसे 3 मेजर क्या हुए थे, एक्सीडेंट्स हुए थे जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पर जो इफेक्ट लोगों पर देखे गए वो कैसे कैसे दिखे गए, ज़्यादा एक्सरे रेडिएशन को फेस करने की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी, बॉडी के जो टिश्यू वगैरह थे वो डिस्ट्रॉय होने लगे, जेनेटिक मेकअप में चेंज हो गया, आपके जीन्स में चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा बढ़ने लगे। विजन भी क्या हो गया, मतलब देखने की जो क्षमता थी लोगों की वो भी अफेक्ट हो गई। अब वही अगर वाटर पोल्यूशन की हम शॉर्ट में बात करें, वाटर पोल्यूशन वहाँ पर होता क्या है, वाटर पोल्यूशन में जो भी कुछ आपके घर का वेस्ट है या केमिकल्स, फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वेस्ट है, वो सारा कहाँ डंप कर दिया जाता है, आपकी वाटर बॉडीज में, वाटर बॉडीज में। तो वाटर बॉडीज में कौन कौन आ सकता है, रिवर है, लेक है, आपके ओशंस है, उन सब में ये डंप किया जाता है। आपके घर में से कौन सा वेस्ट आता है, सीवेज वेस्ट। केमिकल फैक्ट्रीज में से कौन सा आता है, जो भी कोई केमिकल हो, खास करके आप जो केमिस्ट्री के लैबोरेटरीज में केमिकल यूज़ करते हो वो भी कहीं ना कहीं बन रहे होंगे, उनका भी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस हो रहा होगा। वो जो कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद जो एफ्लुएंट्स है या फिर इंडस्ट्रीज में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसको अगर किसी केमिकल से ट्रीट किया गया हो तो वह एक्सेस का केमिकल पानी के साथ मिक्स करके ऐसे बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। घर से निकलने वाला सीवेज के साथ साथ और कौन सा है, आपका जो डिटर्जेंट वगैरह है, डिटर्जेंट सोप वगैरह, वो भी तो एक तरीके का वेस्ट है, राइट, वो भी तो एक तरीके का क्या है, वेस्ट ही है। सॉइल पोल्यूशन, तो सॉइल पोल्यूशन में हो रहा क्या है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो भी कोई वेस्ट मटेरियल है, प्रोडक्ट, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको आप कहाँ डंप कर रहे हो, लैंड में, तो कहाँ डाल रहे हो, लैंड में। उससे क्या हो सकता है कि आपकी जो ज़मीन है वो कैसे होने लगती है, बैरन लैंड बन सकता है, यानी कि बंजर ज़मीन बन जाएगी। उसकी जो फर्टिलिटी है इन केमिकल्स की वजह से वो उसकी जो फर्टिलिटी वो कम होने लगेगी, राइट। और सॉइल पोल्यूशन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा तो आपका फर्टिलाइजेशन, और या फिर जो आप फर्टिलाइजर्स जो यूज़ कर रहे हो, राइट, फर्टिलाइजर्स मेजर तो वही है। क्यों, क्योंकि खेती के बिना तो कोई रह नहीं सकता, खेती के बिना हम जी भी तो नहीं सकते, खेती नहीं की, कुछ अनाज ही नहीं उगाया तो हम खाएंगे क्या, राइट। अगर खेती करनी, अब जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉन्सेप्ट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था,
अगर इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ा है तो उनकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, अनाज को बनाने के लिए, कम समय में ज़्यादा अनाज बनाना है, तो क्या कर रहे हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, जिसमें आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, फॉस्फोरस, ऐसे जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन फर्टिलाइजर में यूज़ किया गया। तो ऐसे जो फर्टिलाइजर्स जब सॉइल में जाते हैं तो उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी सॉइल की वो कम करने लगते हैं, और जो एक्सेस है वो भी फिर से धुल दिए जाएंगे और वो कहाँ जाएंगे, वाटर बॉडीज़ में भी जाएंगे, मतलब वाटर पोल्यूशन भी एक साइड में कॉज करेंगे, राइट। एयर पोल्यूशन के बारे में आप क्या कह सकते हो? एयर पोल्यूशन में क्या होगा कि जो भी फैक्ट्रीज है उसमें से जो निकलने वाले स्मोक है ये, उसको क्या किया जाता है, डायरेक्टली किसके साथ मिक्स किया जाता है, एयर के साथ। आपने देखा होगा जो भी फैक्ट्रीज हुआ करती थी पुराने ज़माने में, आज भी कुछ ऐसी फैक्ट्री है जो एक्सेस जो कोई भी स्मोक या फिर धुआं तैयार होता है वो कहाँ पर बिना किसी ट्रीटमेंट के एयर में छोड़ दिया जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रेसिडेंशियल एरिया के आसपास आप कभी भी कोई भी फैक्ट्री नहीं देखोगे। क्यों? कि अगर रेसिडेंशियल एरिया के आसपास कोई फैक्ट्री अगर प्रेजेंट है तो उसमें से निकलने वाले जहरीली गैसेस की वजह से क्या हो सकता है, लोगों के हेल्थ पर इफेक्ट हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री आप कहीं दूर ऐसे सुनसान इलाकों में देखोगे, या फिर एक इंडस्ट्रीज का स्पेशल एरिया होता है हर सिटी में या फिर हर स्टेट में, कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ क्या देखने मिलेंगी, इंडस्ट्रीज ही मिलेगी। नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, क्यों ज़रूरत है इस एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की, क्यों ज़रूरत है? व्हाट डू यू थिंक, क्या ज़रूरत आन पड़ी इतनी एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की, क्यों ज़रूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि हम इसी एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर इस एनवायरनमेंट के किसी भी फैक्टर की कोई भी ऊपर नीचे हो गई, या फिर कि कोई भी फैक्टर नहीं रहा, या उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई, तो इनडायरेक्टली किस पर असर हो रहा है, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उस पर अफेक्ट हो रहा है। अगर एयर खराब हो गई, आप सांस नहीं ले पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे तो क्या होगा, एक तो आप मर जाओगे, या फिर आपको जो भी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस है वो ज़्यादा होने लगेगी। पानी, अगर पानी नहीं मिलेगा, पानी के बिना तो कोई रह भी तो नहीं सकता, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर रह नहीं सकते। उसका मेन सोर्स जो है उसकी बॉडी, खुद की बॉडी 90% वाटर से तो बनी हुई रहती। अगर वाटर क्वालिटी वाला नहीं रहा तो होगा क्या, अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिजम्स के लाइफ पर अफेक्ट होगा। सेम विद द सॉइल, अगर सॉइल क्वालिटी अच्छी नहीं रही तो आपके जो डेली नेसेसरी फूड जो है वो आपको नहीं मिलेगा। फूड नहीं मिलेगा तब भी आप जी पाओगे या नहीं। तो ये जो सारी कंजर्वेशन की जो कोई टेक्निक्स है या फिर जो ये एजुकेशन है वो कब से देना शुरू होता है, मोस्टली लोग चाइल्डहुड से ही लोग बताते हैं कि जो कचरा है वो डस्टबिन में डालो, उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन करो। अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है तो उसका डिकम्पोजिशन करके आप क्या बनाओ, फर्टिलाइजर्स बनाओ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाओ। अगर पानी है, पानी में हम कोई भी किसी भी डिटर्जेंट्स यूज़ नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी का रीयूज़ भी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? पानी भी क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है। अगर ज़्यादा यूज़ करने लगे, आपने देखा होगा कि जो स्वीट वाटर है या फिर जो यूज़फुल वाटर वो सिर्फ 1% है। 3% में 1% आपको यूज़ करने जैसा 2% तो क्या हो गया, पूरा ग्लेशियर्स में चला गया। उस 1% को भी अगर आप प्रॉपरली कंजर्व नहीं कर पा रहे हो, उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हो, उसका यूटिलाइजेशन अगर अलग तरीके से हो रहा है, तो जो भी कोई पॉपुलेशन का नंबर अचानक से बढ़ रहा है तो उस सब पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल कर पाएगा क्या? नहीं। इसलिए आपको क्या करना पड़ रहा है, अभी एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना पड़े। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज ऑल्सो आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी फिर? बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और बीइंग अ चाइल्ड, आप क्या क्या कर सकते हो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए? जो कचरा वगैरह है उसको सही तरीके से उसका क्या बोलते कैटेगराइजेशन करके, जो वेस्ट मटेरियल जो जहाँ जाना चाहिए वहाँ पर जाना भेजोगे। मतलब ऑर्गेनिक वाला डिकम्पोजिशन के लिए जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट अलग रहेगा, सो दैट वो प्लास्टिक जो है रिसाइकल करके आप यूज़ कर सको, राइट।
वाटर को भी आप प्रॉपरली कंजर्व कर सकोगे। रिसोर्सेस को कंजर्व नहीं किया तो इससे होगा क्या, आपको ये चीज़ें फ्यूचर में मिलेगी या फिर आपके आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको ये इतना अच्छा कंडीशन में आपको मिला, उनको मिलेगा क्या, नहीं। पानी नहीं रहेगा तो इमेजिन करो लाइफ कैसे चलेगी। अगर गुड क्वालिटी ऑफ एयर नहीं मिलेगा तो तुम सांस कैसे ले पाओगे। पानी की बोतल्स आप पैसे देकर लेते हो, वैसे ऑक्सीजन भी आपको पैसे देकर लेना पड़ेगा अगर आपने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ से कुछ कदम नहीं बढ़ाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ नहीं लगाए तो प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या नहीं होगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगा, आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। ये प्लांट्स जो है आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, पूरा लैंड वहाँ से फॉरेस्ट हटा रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ला रहे हो, आपके रेसिडेंशियल एरियाज बन रहे, पार्क्स बन रहे, सब कुछ बन रहा है, लेकिन इसी प्लांट की वजह से हो क्या रहा है, आपको पानी भी मिल रहा है, गुड क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन भी मिल रहा है, गुड क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा था। लेकिन प्लांट्स नहीं रहे तो अभी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कतें आ रही, बारिश नहीं हो रही है, राइट। ये जो प्रॉपर जो साइकिल था, नेचुरल साइकिल, वो अब क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो इसी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लॉ बनाए गए थे। दो तरीके के लॉ थे, एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट था 1986 और दूसरा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसमें क्या लिखा गया था, जिसमें क्या बताया गया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में उन्होंने ये डिक्लेयर किया गया था कि जो एरिया फॉरेस्ट के लिए कंजर्व किया गया है वहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी, वहाँ पर ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता, किसी पर्पस के लिए वो लैंड यूज़ नहीं करेगा या फिर वहाँ के रिसोर्सेज वो यूज़ नहीं करेगा। अगर वहाँ पर भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर ह्यूमंस को परमिट कर दिया गया तो वो तो जाहिर सी बात है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को भी वो कंज्यूम करने लगेगा। इसीलिए माइनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट एरिया भी जा रहे थे, इसलिए अभी पूरा ह्यूमन जो कोई इंटरेक्शन है उस एरिया में पूरा स्टॉप कर दिया गया है। दूसरा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, यहाँ पर क्या बोला गया था कि जितनी भी पोल्यूशंस क्रिएट करने वाली कंपनीज वगैरह है, ओके, या फिर कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोई कंपनीज है जिसकी वजह से पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, उनको क्या कर दिया जाएगा, या फिर अनट्रीटेड कोई पॉल्यूटेंट है, कोई गैस है या फिर कोई सब्सटेंस है, वो लैंड वाटर या सॉइल में छोड़ रहे हैं या फिर किसी भी इंसान की वजह से अगर पोल्यूशन कॉज हो रहा है, एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनको क्या किया जाएगा, पेनल्टी वगैरह दिया जाएगी। उनकी ये जो सारी एक्टिविटीज़ है उनको स्टॉप करने के लिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 को बनाया गया था। यहाँ पर इंसान को पनिशमेंट दी जा रही थी कि अगर एनवायरनमेंट को वो हार्म करेंगे तो उनको पनिशमेंट्स मिलेगी या फिर उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। वाइल्ड लाइफ के प्रिजर्वेशन के लिए भी, प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ एक्ट्स थे, एक्ट ऑफ 1972, जिसमें अलग अलग क्लॉजेस थे, क्लॉजेस 49A, B एंड C। ए में क्या कर दिया गया कि जो ट्रेडिंग है रेयर एनिमल्स की वो कम्प्लीटली बंद कर दी। जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके जो बॉडी पार्ट्स है, हुक हो गए, उनके हॉर्न्स हो गए, उनके टीथ्स वगैरह हो गए, इसको वो यूज़ करते थे, तो वो सारी बैन कर दी। 49B के तहत उन्होंने क्या कहा था कि जो भी स्किन है या फिर ऑर्गन है वाइल्ड एनिमल का, उसका यूटिलाइजेशन या फिर उसको हंट करना उन्होंने स्टॉप कर दिया। एज पर क्लॉज 49 उन्होंने क्या किया कि जितना भी कोई आर्टिफैक्ट्स या फिर कोई चीज़ बनाई गई है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन या फिर डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर एनिमल इज कंपलसरी, यानी कि अगर किसी एनिमल की चीज़ें यूटिलाइज कर कोई चीज़ बन रही तो वो पूरा बैन कर दिया जाएगा। कोई भी ऐसी शो पीस वगैरह जो है, कोई भी आर्टिफैक्ट्स अगर बन रहा है एनिमल्स की वजह से, उसको पूरा बैन कर दिया जाएगा। मतलब एनिमल से बनने वाली कोई भी चीज़ हो, आपकी डेली एक्टिविटीज़ की हो या फिर उनके जो
बॉडी पार्ट से उससे बनने वाली हो, हर एक चीज़ को, एनिमल्स के हर एक चीज़ को यूज़ करना बंद कर दिया गया था। ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट समझ में आया, जिसमें कि उन्होंने 3 क्लॉजेस बनाया, 49A, B एंड 49C। तो उन्होंने एनिमल्स के पार्ट्स, ऑर्गन्स और जो भी आर्टिफैक्ट्स वहाँ से बनाए गए थे उन सब पर बैन लगाया। ऐसे ही एक स्टोरी दी गई है जाधव मोलाई पेयंग। इन्होंने क्या किया था, फ्रॉम द एज ऑफ 16 ईयर इन्होंने क्या किया था, ये फॉरेस्ट एक्टिविटीज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, या फिर उनको प्लांट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, फॉरेस्ट में जाना उनको बहुत पसंद था, इसलिए वो वहाँ पर काम करने लग गए थे सिंस द एज ऑफ 16 ईयर्स। और ऐसे में ही 1979 में क्या हुआ था कि जो कोई सोशल फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट था, उन्होंने अफॉरेस्टेशन जो हुआ था, मतलब अफॉरेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। डिफॉरेस्टेशन लोगों ने कर दिया, उन्होंने जो भी प्लांट्स है, जो भी नेचुरल हैबिटेट है, जो भी प्लांट्स वगैरह थे, उसको क्या कर दिया, पूरा तोड़ दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने फिर 1979 में क्या किया कि फिर से प्लांट्स लगाने की शुरुआत की, सो दैट द बैलेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट विल बी देयर एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे कि इनको फिर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो उनका इंटरेस्ट कहाँ से आया, उन्होंने यही चीज़ उनमें क्यों, किसी भी चीज़ के लिए क्या चिंगारी चाहिए आप में, राइट, कि आप किसी चीज़ को करने के लिए क्या हो, बहुत ज़्यादा इच्छुक हो जाओ। ऐसे ही हुआ क्या था कि एक बार बहुत ज़्यादा जो स्नेक्स थे वो डेड हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर में फ्लड आ गया था। फ्लड आने की वजह से पूरे जो स्नेक्स का जो स्पीशीज था, या फिर जो नंबर ऑफ स्नेक्स थे, वो सारे क्या हो गए, डेड हो गए। इसकी वजह से फिर उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर मोलाई ने क्या करना स्टार्ट किया, बाम्बू प्लांट्स लगाना स्टार्ट किया। वहाँ बाम्बू प्लांट्स लगाने के स्टार्ट करने की वजह से फिर वहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। गवर्नमेंट ने फिर इस प्रोजेक्ट को कितना एरिया दिया, 200 एकड़ का एरिया दिया, जिसमें मोलाई ने बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाने की कोशिश की। सिर्फ उन्होंने लगाए नहीं, उस प्लांट्स को कंजर्व किया, उस ट्रीज़ को छोटे से बड़ा किया। ऐसे करते 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 उन्होंने कितना एरिया कवर किया, 1360 एकर्स का एरिया पूरा प्लांट्स लगा करके, प्लांट्स को प्रिजर्व करके, उनको बड़ा करके पूरा एक फॉरेस्ट का एरिया तैयार किया। इसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। आज वो फॉरेस्ट किस नाम से जाना जाता है, मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। असम का एक एरिया है जहाँ पर मोलाई जंगल फेमस है। ये मोलाई जंगल क्यों, कि जाधव मोलाई पेयंग ने इस जंगल को लगाया, फिर उसको बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ प्लांट्स नहीं लगाए, उनको उसको बड़ा नहीं किया, उसको संभाला, उससे पूरा एक फॉरेस्ट का एरिया कवर किया। बायोडाइवर्सिटी के भी अलग अलग टाइप है। डाइवर्सिटी यानी कि क्या, डिफरेंसेस। जो कोई भी डिफरेंसेस है हमारे जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उन डिफरेंसेस को हम मोस्टली क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी हो सकती, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी हो सकती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो कोई भी जेनेटिक वेरिएशंस दिखता है सेम स्पीशीज में, वो किसकी वजह से आता है, वो किसकी वजह से आता है, जेनेटिक लेवल के चेंजेस की वजह से। यहाँ पर सेम स्पीशीज तो सेम होगी, लेकिन क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखेंगे। कंसिडर को ह्यूमन स्पीशीज ही कंसिडर को, या फिर डॉग, कैट। सारे डॉग एक जैसे दिखते हैं क्या, सारे ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं, नहीं। एक ही फैमिली के 4 मेंबर्स अलग अलग होंगे। आप खुद ही देख लो, आप आपके मम्मी पापा के जैसे दिखते हो क्या, कंप्लीटली नहीं। आप एज अ फैमिली अपने आप में पूरा डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो, राइट। तो जहाँ पर जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा डाइवर्सिटी में, उसे आप क्या कहोगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। यहाँ पर होगा क्या कि जो सेम स्पीशीज है उनमें
3 लेवल की डाइवर्सिटी दिखेगी, मतलब एक ही स्पीशीज कहने के लिए एक ही होगी, लेकिन जो उसके इंडिविजुअल मेंबर्स होंगे उस स्पीशीज के, वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट इज योर स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या कि डॉग फॉर एग्जांपल, डॉग और कैट की जो स्पीशीज है वो सेम है क्या? नहीं, स्पीशीज में डिफरेंट आता है। डॉग के कैरेक्टर्स अलग होंगे, उनकी हाइट, वेट, उनके जो बॉडी के जो पैटर्न्स हैं वो अलग होंगे, कैट्स के अलग होंगे। ह्यूमन और कैट्स में कोई सिमिलैरिटी है क्या? नहीं। जो बेसिक है, हमारा एंसेस्टर भले ही सेम हो, हम में जो बेसिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है जैसे ईयर, नोज, आईज, लिम्स, ये सारी सेम होगा, लेकिन जो ब्रॉड वे में जो सिमिलैरिटीज है उन सिमिलैरिटीज में भी क्या आया? डिफरेंसेस आया। इनन्यूमरेबल ऑफ स्पीशीज ऑर्गेनिज्म ऑकर इन स्पीशीज डाइवर्सिटी में क्या आता है कि जो भी स्पीशीज है हर एक में अलग अलग कोई कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए या फिर माइक्रोब्स हो गए, वो भले ही ब्रॉड कैटेगरी में आते हो कि हाँ ये पूरा एनिमल्स का सेट है, ये प्लांट्स का सेट है, ये माइक्रोब्स का सेट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या आएगा कि वो सारे माइक्रोस्कोपिक हो। प्लांट्स का क्या कि वो ग्रीन हो गए, उनके पास रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, ये ऐसी चीज़ें होंगे। एनिमल्स में क्या आएगा कि उनके पास ईयर, नोज, हैंड्स, ऐसे उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन पर्टिकुलर स्पीशीज़ अगर कोई दो इंडिविजुअल्स अगर इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के हमने कंसिडर करके, वो कभी सेम रहेंगे क्या? नहीं। प्लांट्स और एनिमल्स में कोई सिमिलैरिटी है क्या? नहीं। एनिमल्स और माइक्रोब्स में कोई सिमिलैरिटी है क्या? नहीं। ओके, नेक्स्ट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी क्या? जो भी एनवायरनमेंट में या फिर जो भी हैबिटेट में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, भले वो किसी भी स्पीशीज का हो, ठीक है, वो क्या होगा? अलग होगा। जैसे कि आपकी एक्वेटिक इकोसिस्टम आती है। एक्वेटिक में भी फिर क्या, कुछ लेक में रहेंगे, कुछ पॉन्ड में रहेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म रिवर में रहेंगे, राइट। तो इन सब में क्या आ रहा है? वेरिएशंस आ रहा है। अगर कोई ट्री पर भी रह रहा है, ट्री की भी एक अपनी इकोसिस्टम है, स्पेसिफिक ट्री पर आपको स्पेसिफिक बर्ड्स और इंसेक्ट्स ही देखने मिलेंगे, राइट। स्पेसिफिक ट्री पर आपको कोई स्पेसिफिक इंसेक्ट्स और बर्ड्स का ही ज़्यादातर उठना बैठना या फिर रहना आना जाना दिखेगा। एनिमल्स का भी सेम है। वाइल्ड एनिमल्स आपको जंगल में ही दिखेंगे, वो हमारे साथ ह्यूमन रेसिडेंशियल एरिया में दिखते हैं? कभी नहीं दिखते। वाइल्ड एनिमल्स का अपना एक अलग इकोसिस्टम है, ह्यूमंस का एक अलग इकोसिस्टम है, राइट। इसी तरीके से जो कोई रहने का हैबिटेट की जो कैटेगरी है वहाँ पर क्या है? डिफरेंसेस है। यहाँ पर ह्यूमंस की अगर कंसिडर करें, ह्यूमंस एक्वेटिक हैबिटेट्स से अलग है। वाइल्ड लाइफ जो है ह्यूमंस के साथ रह रहे क्या? नहीं। नेक्स्ट है सैक्रेड ग्रुप करके एक कॉन्सेप्ट है। सैक्रेड ग्रुप्स यानी कि क्या? वहाँ पर बहुत सारी सेंचुरीज होती। सेंचुरीज यानी कि क्या कि नेचुरल जो एरिया है वो एज इट इज़ वैसा का वैसा, जैसे नेचर ने उसे बनाया वैसे के वैसा उसे कंजर्व करना। ओके, सैक्रेड ग्रुप्स को सेंचुरीज भी कहा जाता है। लेकिन सैक्रेड ग्रुप स्पेसिफिक ये टर्म क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने किसको एसोसिएट किया? गॉड्स को। ओके, वहाँ पर से एसोसिएट किया गॉड्स को कि ये गॉड का एरिया है, यहाँ पर गॉड रहते हैं, यहाँ पर उनका एग्जिस्टेंस है, उन्होंने ये सारा एरिया बनाया, ऐसा करके उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है। ये ज़्यादातर आपको वेस्टर्न घाट्स के जितने भी वेस्टर्न घाट्स है वहाँ पर दिखेगा। आज इंडिया में मोर देन 13,000 सैक्रेड ग्रुप्स प्रेजेंट है। इंडिया में 13,000 से भी ज़्यादा सैक्रेड ग्रुप्स प्रेजेंट है, अमंग विच वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो वन। वेस्टर्न घाट्स कहाँ से शुरू होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, ये जो सारी आपकी वेस्ट साइड की जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर आपको यूजुअली ये देखने मिलता है। वहाँ पर अलग अलग तरीके के भगवान हो सकते हैं, उनका एग्जिस्टेंस हो सकता है, लोग वहाँ पर जाते हैं, वर्शिप करते हैं। इसलिए ह्यूमंस वहाँ जाकर कोई इंटरैक्शंस नहीं करते, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करते, बिकॉज उसे क्या कहा है
ये गॉड का लैंड है, उन्होंने बनाया है, उनके लिए है, इसलिए वहाँ पर कोई। अब बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व की जा सकती है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्व के लिए उन्होंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए, जैसे कि क्या, रेयर जो स्पीशीज़ है उसको पहले कंजर्व करो, नेशनल पार्क्स बनाओ, सेंचुरीज बनाओ, ठीक है, बायो रिजर्व्स बनाओ कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस मिल रहे जिस एरिया में, उस एरिया को कंजर्व करो, ठीक है। कोई स्पेशल स्पीशीज़ है जो अब बहुत एंडेंजर्ड हो चुकी है, अभी एक्सटिंक्शन पर आ रही है, उसके नंबर्स बढ़ाने के लिए उसको वैसा हैबिटेट या फिर वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो जिससे कि वो ख़त्म ना हो, उससे और ऑर्गेनिजम्स बढ़े, वो स्पीशीज़ कंटिन्यू रहे। कुछ रूल्स बनाओ, रूल्स को फॉलो करके इन एरियाज़ को कंजर्व किया जा सके। अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उससे वैसे पनिशमेंट मिले, पेनल्टी लगाई जाए, जिसकी वजह से कोई उस एरिया को या फिर उस पर्टिकुलर हैबिटेट को हार्म ना कर सके। और हमेशा क्या, ट्रेडिशनल नॉलेज का रिकॉर्ड रखो। किसी भी चीज़ के पीछे साइंटिफिक बेस्ड होता ही होता है, आप उस चीज़ के पीछे का साइंस ढूंढो, आपको उसका इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगा। यहाँ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दी गई है, जैसे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, गांधी पीस ऑफ फाउंडेशन है, CPR एनवायरनमेंट ग्रुप है। ऐसे कुछ हेल्प करने वाली, खुद की इच्छा से हेल्प करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो आगे आई है और बायोडाइवर्सिटी को, नेचुरल हैबिटेट को कंजर्व करने। और कुछ इंटरनेशनल भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पूरे अलग अलग कंट्रीज एक साथ आकर उनके हैबिटेट को या फिर वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने के लिए काम कर रही है, आगे आ रही है। इसमें से कौन सी आपकी, ग्रीन क्लाइमेट फंड फ्रॉम कोरिया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फ्रॉम कैम्ब्रिज, वर्ल्ड लाइफ फंड फ्रॉम न्यूयॉर्क, ऐसी कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज है जहाँ पर अलग अलग देश एक साथ आते हैं, रूल्स बनाते हैं, कंजर्वेशन के लिए कुछ अलग अलग मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स वगैरह देखने मिलते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ एनिमल्स की, प्लांट्स की या किसी माइक्रोब्स की देखने मिलती है। एनिमल्स में अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे, अलग अलग जो स्पीशीज़ है उनका नंबर इन एरियाज़ में ज़्यादा रहता है। और ऐसे जो हॉट स्पॉट्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एंडेमिक, एंडेंजर स्पीशीज़ भी है हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिनको क्या हो रहा था, हार्म हो रहा था, इसलिए उसको हॉटस्पॉट कहा गया कि इस एरियाज़ को अगर प्रिजर्व नहीं किया तो आगे चलकर डेफिनेटली हमें कोई ना कोई उसका क्या करना पड़ेगा, बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सबसे बड़ा वाला कौन सा है, सेंसिटिव एरिया। हॉटस्पॉट यानी कि ऐसे कैसे एरिया जहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है, किसी भी तरीके की वाइल्ड लाइफ, मतलब कोई भी लाइफ हो वहाँ पर, प्लांट, एनिमल या फिर कोई बैक्टीरियल स्पीशीज़ हो, माइक्रोब्स की स्पीशीज़ हो, वहाँ पर ज़्यादा अफेक्ट करेगी। कितना परसेंट एरिया ऐसे जो बायोडाइवर्सिटी उसने कवर किया है अर्थ का, 15% एरिया, जिसमें से क्या है अभी फ़िलहाल के लिए 86% ऐसा एरिया है जो ऑलरेडी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से वो ऑलरेडी उसको नुकसान हो चुका है। जिसमें हुआ क्या कि 135 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल, 85 स्पीशीज़ जो भी है जंगल्स में, ईस्टर्न जंगल्स में पाई जा रही थी, वो क्या हो गई, एंडेमिक हो गई या फिर उसका लॉस हो गया। ठीक है, ऐसे स्पीशीज़ और या फिर ऐसे जो प्लेसेस है उसको कंजर्व करने के लिए दी एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑफ कंट्री, जिसमें है आपकी मानस सेंचुरी, सुंदरबन सेंचुरी और आपके वेस्टर्न घाट। ऐसे 3 बड़ी बड़ी हेरिटेज प्लेस है जहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसे स्पीशीज पाए जा रहे हैं जो अब क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है या फिर एक्सटिंक्ट होने के पाथ पर है हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। जिसमें जो आपका वेस्टर्न घाट का एरिया है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और केरला कवर कर रहा है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया,
वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस का कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ चुका है। फिर यहाँ के जो एशियाटिक लायंस और वाइल्ड बाइसन थे वो क्या हो गए, डेंजर जोन में आ गए। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ, ये नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर नेचुरल जो माइनिंग वगैरह कर रहे थे, माइनिंग एक्टिविटी की वजह से जो भी वेस्टर्न घाट्स का एरिया था वहाँ पर जो वाइल्ड लायंस थे और जो बाइसन्स थे, एशियाटिक लायन और बाइसन्स, उसके लाइफ को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, क्योंकि उसकी जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, उसे क्या किया जा रहा है, डिमिनिश कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपकी मानस सेंचुरी जो है, वहाँ पर मिलने वाले टाइगर और जो राइनो है वो भी डेंजर में आ चुके हैं। जो मानस सेंचुरी, वहाँ के जो क्या है, टाइगर और राइनोस की स्पीशीज डेंजर में आ चुकी। सुंदरबन के कौन से 2 ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज है, वहाँ पर टाइगर। सुंदरबंस कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल के सुंदरबन एरिया में जो भी टाइगर्स थे उसको, उसकी लाइफ को क्या हो रहा है, थ्रेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डैम्स, डिफॉरेस्टेशन, फिर ज़्यादा फिशिंग और डिगिंग एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हुआ, ऐसी एक्टिविटीज़ इस सेंचुरी के एरिया में की गई। प्रॉब्लम किसको आई, टाइगर को आई। वहाँ के जो टाइगर्स के नंबर थे वो क्या हो रहे, कम होने लगे। ठीक है कि थ्रेटन स्पीशीज है, उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली होता है कि नहीं, उनमें भी कुछ उन्होंने कैटेगरीज बनाई है कि वो पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट होने के पहले, कि वो मतलब ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके, या अभी एक्सटेंड होने की जस्ट शुरुआत है, या फिर वो मिडल तक आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन, लेकिन अभी भी कोई चांस है कि हम उस स्पीशीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं। ऐसे जो अलग अलग कैटेगरी, उसके बेसिस पर उन्होंने क्या बनाया, क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें पहला आता है आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में क्या बताया उन्होंने, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में उन्होंने कहा, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में उन्होंने क्या कहा है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उनका नंबर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो हैबिटेट था वो अब कम हो रहा है। अगर इमेजिन करो, आपकी रहने की जगह अगर आप कम कर रहे हो तो और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो ऑर्गेनिजम्स का नंबर भी कम होते जा रहा है। क्योंकि अगर उनको रहने के लिए, उनके नेचुरल एक्टिविटीज़ के लिए, उनके जो डेली की हैबिटेट्स थी वही नहीं रही, तो वो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे क्या, नहीं। यहाँ पर फिर ऐसे कौन से स्पीशीज़ है जो एंडेंजर्ड हो गई, फिर लायन टेल्ड मंकी और लेसर फ्लोरिकैन जो है, ऐसी ऑर्गेनिजम्स एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ गई। क्यों? क्योंकि इनका जो हैबिटेट था वो अफेक्ट हो गया, और हैबिटेट अफेक्ट होने की वजह से हुआ क्या कि अब ये कहाँ पर आ गई, एक्सटिंक्शन के बहुत ज़्यादा पास आ गए। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के बहुत पास आते हैं, क्योंकि उनका मोस्टली क्या अफेक्ट हो चुका होता है, उनका हैबिट एंड हैबिटेट। नेक्स्ट इज योर रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है, लेकिन वो पूरा एक्सटिंक्शन के पास नहीं जा चुके होते, लेकिन एक्सटिंक्शन के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। इसलिए ऐसे स्पीशीज़ को आप एंडेमिक भी कहते हो। क्या कहते हो? एंडेमिक भी। मतलब अभी अगर आपने कुछ उसके कंजर्वेशन के लिए कुछ कदम नहीं उठाए तो होगा क्या कि वो तुरंत क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक है, रेयर स्पीशीज़ में आता है कि ये रेयर स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनका नंबर बहुत ज़्यादा, पहले जो नंबर था उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा घट चुका होता है, और अगर अभी कुछ कंजर्वेशन के लिए उनके हैबिटेट को कंजर्व करके उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो जल्दी से वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसे में अब हाल ही फिलहाल में क्या आ रहा है, मस्क डियर और रेड पांडा इस कैटेगरी में बैठ रहे कि अगर हमने उनके प्रिजर्वेशन के लिए कुछ नहीं किया तो वो जल्दी एक्सटेंड हो जाएंगे, यानी कि क्या कि वो आपको फिर से कभी नहीं देखने मिलेंगे अर्थ पर। नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज जो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, उनका नंबर कम होते जा रहा है, और अचानक से अगर किसी चीज़ का नंबर कम होते जा रहा है, जो काफ़ी हद तक, अगर सपोज
कुछ दिनों पहले आपको 100 टाइगर्स देखने मिल रहे थे किसी एरिया में, अब उनका नंबर अचानक से कम होने लगा, तो ऐसे स्पीशीज कैसे कही जाती है? वल्नरेबल। वल्नरेबल क्यों? उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा कि अब भी इनका नंबर कम नहीं होना चाहिए, कि कम होने लगे मतलब ये फिर क्या होने, रेयर दिखने लगेंगे, कि 100 टाइगर थे पहले, अभी बहुत कम, यानी कि 10-12 रेयर दिखने लगे, और उसके साथ साथ क्या हो सकता है, फिर एक्सटिंक्ट होने के मतलब पूरे एक्सटिंक्शन के बहुत करीब हो सकते थे, राइट। तो वल्नरेबल स्पीशीज का सिर्फ होता क्या है कि नंबर डिक्लाइन होने लगता है, यहाँ पर नंबर डिक्लाइन होता है, आपको तो पता चल जाता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ये पर्टिकुलर स्पीशीज रह रही थी, अब उसका नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसे स्पीशीज को क्या कहोगे, वल्नरेबल कहोगे। वो पूरे एक्सटिंक्ट भी नहीं हो चुकी होती या फिर एक्सटिंक्शन के पास भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके प्रिजर्वेशन के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं। इनडिटर्मिनेट स्पीशीज, इनडिटर्मिनेट स्पीशीज यानी कि क्या, आपको उनको देखकर ऐसा लगता है कि अभी एक्सटिंक्ट ही होने वाले हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न में चेंज हो जाता है, उनके हैबिटेट में चेंज हो जाता है, ऐसे कुछ चीज़ें या फिर अनयूजुअल चीज़ें आपको देखने को मिलती है कि जिसकी वजह से आपको क्या लगता है कि अभी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसे जो स्पीशीज है उसको क्या कहोगे, इनडिटर्मिनेट। आपको पता ही नहीं चल रहा कि एक्सटिंक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला, ये रेयर है या उनका मतलब एंडेंजर्ड हो चुका है, ऐसा कोई भी डाटा आपको नहीं मिल रहा उसके वजह से, उस ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के वजह से। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कहोगे, इनडिटर्मिनेट, जिसमें आती है आपकी जायंट स्क्विरल। जायंट स्क्विरल की कुछ बिहेवियरल एक्टिविटीज की वजह से पता नहीं चल रहा कि वो रेयर मतलब एंडेंजर्ड होने वाली है या फिर एक्सटिंक्ट होने वाली है, वल्नरेबल है या नहीं, उसका हैबिटेट है या नहीं, ऐसे ही कुछ भी चीज़ें पता नहीं चल रही। तो ऐसे जो स्पीशीज़ है, ऐसे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, वल्नरेबल, इनडिटर्मिनेट स्पीशीज, इनका स्टडी किया जाता है। और जो आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये जो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, एक रेड लिस्ट बनाती है। रेड लिस्ट बनाती है जिसमें कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड यानी कि अभी वो एक्सटिंक्ट ही हो गए, ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की एक लिस्ट बनाती है। वो रेड लिस्ट में सारे ऑर्गेनिजम्स के क्या आते, नाम आते, जिनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनका नंबर इतना मिनिमम हो चुका होता है कि वो कब एक्सटिंक्ट हो जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा, इतना उनका नंबर कम हो चुका होता है। सिमिलरली ये और 2 लिस्ट बनाती है, पिंक लिस्ट एंड ग्रीन लिस्ट, या फिर पिंक पेज और ग्रीन पेज यहाँ पर उनके लिस्ट में रहता है या फिर उनके कॉन्सेप्ट में है। पिंक लिस्ट में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं कि जहाँ पर वो अब एंडेंजर्ड या फिर कैसे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है या फिर ऑर्गेनिज्म से अभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन कहाँ पर आते हैं, उनके पिंक लिस्ट में। पिंक लिस्ट में, रेड लिस्ट में सारा कवर होगा, रेड लिस्ट में सारा कवर, जितने भी मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है अलग अलग कंट्रीज के, वो सारे उसमें डाल दिए जाएंगे। पिंक पेज में क्या होगा, पिंक पेज ऑफ बुक कंटेन्स द नेम ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, while the green page contained the names of the organism which were endangered but now they are safe। ठीक है, ग्रीन पेज यानी कि ग्रीन सिग्नल यूजुअली क्या होता है, सेफ सिग्नल होता है ना, राइट। तो किसी ज़माने में जो ऑर्गेनिज्म एंडेंजर्ड था, जिसके लाइफ को थ्रेट था, किसी प्रिजर्वेशन एक्ट की वजह से उसको कंजर्व करने की वजह, अब उनका नंबर कैसा है, ऑप्टिमम है, वो अब सेफ हो गए, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर नहीं है। ऐसे जो स्पीशीज के नाम है वो कहाँ पर आते हैं, आपके ग्रीन पेज में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, एनवायरनमेंट आपको प्रोटेक्ट करेगा। जो अफॉरेस्टेशन है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा करो। आपने डिफॉरेस्टेशन किया आपके यूज़ के लिए, यानी कि आपको प्लांट्स की चीज़ें चाहिए थी, आपको रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए आपने जंगल तोड़े, लेकिन अब वक्त आ गया कि आप जंगल को फिर से लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले, गुड क्वालिटी ऑफ एयर मिले, ऑक्सीजन मिले।
अब जो चीज़ें आपने गलत की थी, गलत चीज़ों को सही करने का क्या आया, अब वक्त आया है। इसलिए छोटे छोटे जो स्टेप्स है आप उठा सकते हो, क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हो, प्लांट्स को आप डिस्ट्रॉय मत करो, ठीक है। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्डहुड से उस छोटे बच्चे को उसमें वो वैल्यूज इनकलकेट करो कि वो एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना पहुंचाए, एनवायरनमेंट के सेफ्टी के लिए वो कुछ ना कुछ हमेशा वो बच्चा करता रहे। पेपर को प्रिजर्व करो। पेपर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हो, मतलब प्लांट्स, पेपर कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। अगर आप पेपर्स का मिनिमल यूज़ करोगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसका रीयूज टाइप करोगे तो जाहिर सी बात है डिफॉरेस्टेशन करने की आप पर नौबत ही नहीं आएगी, राइट। अपने जो आसपास की एयर है, वाटर है, सॉइल है, उसको क्लीन रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है, हमारी ही है। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम अपने लेवल पर इन सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आज भी बचा सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग एन part of this environment, we can take small steps so that the environmental factors can be conserved, just like by planting more trees, not using the excessive paper, as the paper is extracted from plant itself. You can reuse the papers, right, you can reuse the papers. Then proper use of water, proper management of water. These are some small steps which is necessary for the protection of some environmental factors like such as water, air, soil. Okay, here ends your chapter.